Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. With? Himanshu and Karishma. You guys together? Yeah. Dating? You're married? कितने टाइम से? 1 साल होने वाला है. तो लड़ते हो कभी? नहीं. अभी लड़ते नहीं? बहुत ज़्यादा. 1 साल में ही? बहुत सालों से जानते हैं. जानते हो मतलब कब से? 8 साल. 8 साल से? किस बात पे लड़ते हो बताओ? एक रीजन स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो. घर के काम. एक रीजन. घर का क्या काम? गंदगी करता है. तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना? हिमांशु. हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? मोजे वॉशिंग? तो मोजे कहाँ डलते हैं? उल्टे करके डालता है वो, सीधे करके. ये नहीं पता. तो मैम वो तो पानी है. आपको ऐसा लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए? नहीं मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क. आपको भी अभी पता चल रहा है? एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो. It's not going. You are going against the washing machine company only. या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा. कपड़े की जुराबी होती है ना. आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? आप सीधा करते हो and you fold it. And it's dirty. On this point, she just got triggered. Why is she folding it? This is patriarchy! It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? No, he can change that habit. He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं. Is what I am saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. मैं तो ऐसे गोला जाता है मेरा अंदर. हम मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता. मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूं साथ. हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड. इट्स ऑलवेज क्लीन. इट्स ऑलवेज क्लीन. हिमांशु, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else dating, married, whatever? Where is ma'am? Then we can't take this question. We want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही. मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा. मैं बोलता हूँ मैंने व्लॉग में क्या बोला? मैंने दारू छोड़ दी.
फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी। तो मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी। मेरे को समझ आया, कांट लीव अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक नाउ। इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एंड ड्रिंक लेस। ये कल भी तो मिलेगा। Then no, I can't take this, na. Otherwise, I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई। You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ala. Aarti and Ala? आरव, आरव एंड आरती। अरे ठीक है भैया। आरती एंड आलम, आलाप। हट गए। Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात पे लड़ते हो? क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? There are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting. They are fighting. पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये। I think these are the trouble makers. इस ग्रुप में क्या है? आरती की दोस्ती एक दो लोगों से है, आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है। नहीं, I want to know from आलाप. आलाप, tell me. No, I don't fight actually. I don't fight. Oh, so then what? She fights with herself only or what? You are also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Aarti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को। ऐसे नहीं, एक आवाज ही नहीं, बात सारे हैं। सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। मैं क्यों कर देता हूँ ये सब यार? इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप। In front of Alap, this is like. आरती, टेल मी, क्या रीजन है बताओ? मजाक कर रहा था। क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई। बोलो। Oh, recently I'm going for a bachelor's. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? Because she doesn't want me to go. Aarti, but why don't you want Alap to go with his friends? Huh? Oh, please don't go deep into that. नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Aarti, you tell me, why don't you want him to go? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है। क्या है पीछे का रीजन बताओ? अलाप, हैं? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो मेरे को लग रहा है पिछली ट्रिप पे गलत करा है। ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है। ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फास्ट वार्निंग मिलती। दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू। आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट, आई एम जस्ट फॉरगिविंग यू। ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है।
और तुम्हारी बात करूंगा तो 3-4 और बैठे उनको भी याद आ जाएगा। I know what you all say, yeah? I know everything. मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है, एकदम टैबू में आता है एकदम ऐसे। इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? यू नेवर नो। एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके तुम्हारा था क्या? तुम्हारा नो था क्या? मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. Okay दोस्तों, so I hope you liked the video. Thank you so much for liking the video. टूर की डिटेल्स दे रहा हूँ। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो भी कर रहे हैं वो है शिकागो, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा, ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे उसके बाद। कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा? Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ cities के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट लिंक फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहाँ पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%। बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे तो स्टैंड अप वीडियो वहाँ बनाएंगे। सी यू गाइस। यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 ऑफ मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ, बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर। You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा thought डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read never give up. And I'm like, मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट पे जाके यही दिखाने वाला हूँ. फोटो ID सर ये है ना मग, चाय भी हो जाए. I also love watching cricket, and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन लोगों को नहीं मारा है, लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators, they have their own styles. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit.
शोएब अख्तर. शोएब अख्तर. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोग के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांड दूं, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? आज मेरे देश को कच्चा बोला तूने. You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he says Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी. Virat जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया. क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says जांघें, cameraman cuts it to जांघें. Like this part. On national television, I am watching मोहम्मद शामी's जांघें. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघें देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है, जांघें हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ने ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड. Guys, मुकल्लम is Brendan McCullum from New Zealand. Sorry. पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या ऐसा क्यों? नहीं, आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते. आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है नीचे. ये है. यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार? यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई. वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार. थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं? ठीक है मैम. कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो? पहले आपने देखा है किसी का? फर्स्ट टाइम है. ओ क्यों? तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे. ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं. तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें. खाली थे जी गौरव, खाली थे. आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ. ये कौन है? ये जसवाल. अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो. I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है. I'll just have a nice conversation with you, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक. अरे महाराजा जनक. मैम आपका नाम? ऋतु. ऋतु.
ऋतु मतलब RUTU. मतलब ऋतु ऋतु सीजन होता है ऋतु सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं ऋतु पता था आपको ऋतु होता है ऋतु तो कुछ नहीं है ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना ऋतु नहीं होता ऋतु भी होता है ऋतु होता है ना ऋतु भी होता है हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना मैं ही समझ लूँ सही है भाई ये अलग ही लकड़ा फंसाने आई है मेरे ये वाला माल चाहिए मेरे को, ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना भाई मुझे कुछ और ही लगा मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया भाई कह रहा है ये वाला माल मारो भाई क्या बोल रहा मेरी फट ही गई क्या बोला है ये इसके साथ ऋतु आई है ऋतु सारे सीजन्स भूल गई मैं ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग कुछ माल भूख की नहीं है शी इज जस्ट हैप्पी सही है मैम कब से हो जैसा वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं ऑलमोस्ट 2 years आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ मैं दोस्त हूँ यार आपका आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको है ना होता है इसलिए ज्यादा हंस रही है. इसलिए ज्यादा हंस रही हैं कैसे मिले आप दोनों फ्रेंड्स की गैदरिंग में डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर नो आई एम हियर फॉर 2-3 days 3 दिन के लिए आप इधर उसमें से भी आप एक दिन चुन के इधर ही पहुंच गए भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था मॉल बने आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है चलो भाई 3 दिन का विंडो है आओ भाई खत्म करो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट क्या क्वालिटीज अच्छी है 2-3 क्वालिटी बताओ very sweet Very very sweet. humble and completely opposite to me he's very calm वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे सभी को पता चल गया है हाँ फिर he's the best what I can have like अरे भैया अरे भाई गौर जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं मैं बातें करता हूँ ठीक गौरव कोई था ही नहीं यही है अब क्या 3 साल से चल रहा है हमारा चल रहा है इतने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी पता है जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3 She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खत्म कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे और अ परफेक्ट विद टाइमिंग जिस दिन मेरा 2 मिनट इनका 2 मिनट जिस दिन मेरा 10 मिनट इनका भी 10 मिनट नहीं सही है यार नाइस नाइस कपल यार ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो नहीं हो सच बता दो चल रही है बात चल रही है ऐसा टाइप टेल मी ऋतु टेल मी नो टेल मी यू गाइस आर कपल ना No. यू आर मे बी यू डोंट नो नहीं ये देखो ये एक कपल है मान के राजी नहीं है ये इन पर तू है किसको नहीं पता अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है ऋतु की फटकी क्या बोल रही है What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी कैट फाइट हुई थी प्रॉपर कैट फाइट तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी और दूसरी हमारे दिल्ली की थी डीपीएस वगैरह की तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग पंजाब वाली ने खींच के चाटा चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी दिस बिच इज सेइंग समथिंग मेरे ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं आप तो कैट फाइट हो जाएगा मजा आ जाएगा पता सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है शो यही बढ़िया है
कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, फिर से। देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया। अरे भाई बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना? एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है? मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे कर रहा है। भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया। मैं गंदा इंसान हूँ। सोच लो बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से साथ घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपको दिखा नहीं? मेरे को ये क्या कर दिया भाई? एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा। उसका बस अब 15 सेकंड हुआ, वो बाहर ही आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई, इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। तो पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बांध के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है मैम आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है?
द डेट? व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, जिनको 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा कभी, साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो? जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है, यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया? मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या? तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो? फुटपाथ पे चले, पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते चलते ना उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, कह गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहाँ से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक ग्रुप। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे। देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं।
फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की, आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है, वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठे होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई, यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, कर क्या बे भाई। वो इतनी तेज चिल्ला के बोलो, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली, वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग, जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टर्डम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था, सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है, आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या, मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है दिन जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? और ये कौन है मौत का सौदागर? रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है, कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की कह रही 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चली सड़क पे, ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आजा सर, गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है, चल फिर। अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ, ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब।
साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटिल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All of you together? Nice यार, nice. किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना ये ट्रैक्टर लेकर निकले यार, हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग, एक सेम सोसाइटी। आपने हाँ की बोल दिया, जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे मैडम। सेम स्कूल, कौन सा स्कूल गए आप लोग? सलमान पब्लिक, सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन। अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ, थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या वर नाम तो बताओ? वाइनबर्ग एलन मसूरी। Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSC। ओह सही है। भाई आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो, कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23 ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो, ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका, सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज, पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर आज? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार, कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार।
हाँ मैं सलमान बॉयज़ का बता रहा था। तो हमारे स्कूल का एक बार मैच हो सलमान बॉयज़ से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के इतने, मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते हैं, और मेरे मुंह पे नहीं 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है, उन्होंने सलमान बॉयज़ ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल, लड़के खेल रहे हो भाई बहुत तेज मार रहा है। जो वन डाउन लड़का जाता था ना पहले वाले को, इतनी तेज बॉल पड़ी, कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने एलवी का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा, इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा एलवी, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने ये। नहीं मैंने देखा एलवी के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर छुपा कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती हूँ सही, पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया है बैग? 160। और डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये। ओए भाई ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000, मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग, पीछे के बंदे पूछ रहे हैं, भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1,60,000 मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग, सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू, बिकॉज़ मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिख मंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की, 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट। आगे सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैच। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव? लखनऊ? आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स ने मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स? सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किसी से? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था। सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं,
कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात है? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई, एवरी टाइम 1,60,000 अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे दे। मैं जब मुंडी घुमा इसको देख करके मैंने दिए पैसे, मैं भी खाऊंगा, पूरी चटनी लगा के। मेरा पिज्जा ना छूट जाता थोड़ा सा भी, या हराम को ज्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना आपसे? आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो, ऐसे कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप, है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1 लाख का खर्च, 1,60,000 का खर्चा अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए भाई? नहीं, मुंबई से आए हैं। कितने लोग आए हैं? 6। किसका प्लान था? आपका। अब आपको पता है ये बंदा 6 लोगों ले तो आया, वो भी नवी मुंबई। नवी मुंबई से यहाँ पहुँचने में और दिल्ली से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट सेम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट सेम। मैंने फरीदाबाद से स्टार्ट करा, इन्होंने पनवेल से स्टार्ट करा। मैंने 1 घंटा गया, एयरपोर्ट पहुंचा, ये 1 घंटा एयरपोर्ट वो टोल तक पहुंचे, फिर इन्हें 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पहुंचने में लगा, नीचे उतरा तब तक मैं भी यहाँ पहुंच गया। मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्टेड आई गेस। क्या करते हैं भाई आप लोग, सब लोग फ्रेंड्स, कॉलेज सोसाइटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? यू आर स्टिल इन कॉलेज? सब सेम कॉलेज से थे? सही है। तो क्या आप में से कोई डेट वेट भी कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती यारी चल रही है बस। शी इज अ ट्विन सिस्टर। भाई खाना आप ही खाते हो घर में? भाई देख लो, आपने आपको दिख नहीं रहा पीछे, कांगड़ी सी पतली सी बेचारी, और ये देखो भाई सखी कितना खा रहा है यार। सही है, ट्विंस। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। मेरे घर में भी ट्विन भाई बहन है, छोटे हैं वो, बहुत लेट। बधाई हो। बधाई वाले नहीं होते, जैसे जब वो हुए थे तो मुझे पता था बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मेरे को लगता है भाई बहन में सिर्फ इतना ही गैप होना चाहिए कि बड़े वाले को पता ना होगी ये हुआ किस तरीके से, क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है इनके होने के लिए।
आपको तो आई एम गेसिंग नहीं पता होगा जब आप लोग साथ में हुए थे तो। सही है यार, लड़ाई झगड़ा होता है तुम दोनों का? यू गाइस डोंट फाइट? समटाइम्स यू फाइट, लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू फाइट? आप बोल रहे थे आज हम सब बॉयज जाएंगे, ओह तो जबरदस्ती लाना पड़ा। दिस इज अनदर रीजन टू फाइट आई गेस। तो ये तो आ गई, आप क्यों चेप हो गए फिर? अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो ये आती है तो उसके बाद ये भी आती है। तो ऐसा क्या बॉयज के चक्कर में निकले थे घर? क्या ऐसा मचाने सारे भाई चाहिए? नवी मुंबई से खारगढ़ से खार जाएंगे ब्रो, सारे भाई मचा करके आएंगे। क्या करते? 6 लड़के आते तो इन दोनों को लाने के लिए 2 लोगों को आपने हटाया है? नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। कैसे आए आप अर्टिगा में? 6 लोग तो बड़ा मुश्किल है भाई एक गाड़ी में। किसमें? इनो 2 लोग मुंबई। तो आपने भी मान लिया कि नवी मुंबई मुंबई नहीं है। नवी मुंबई इज मुंबई ओनली, राइट? इट्स मुंबई, राइट? इट्स ऑल। ओह गॉड, कैसे खिलाफ हो रखे यार तुम लोग। इनकी तो शक्ल पे ऐसे नहीं जैसे अगर नवी मुंबई को मुंबई बोल दिया तो मुंबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो कुछ नवी मुंबई मुंबई है यार, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है। We cannot talk about it. You cannot talk about it, क्यों? We are from Thane. You are also from Thane. Meet your real cousins. आप चारों लड़कियां थाने से आए हैं। पता है ये इन प्लान में आए थे ये 4 लड़के। ब्रो हम 4 से आएंगे नवी मुंबई से, 4 लड़की आएंगी थाने से। And we'll chill in car, bro. But sisters came. You want to meet these guys? No? Why? You haven't seen them yet. It's okay. Even they haven't seen you. So it's a blind dating kind of a thing. Okay? Don't watch them, and you guys also don't watch them. Okay? I will help you guys. It's like a speed dating. सुना इसके ऐड वो चलती है। Tinder Bumble, live Tinder चलाऊं live. Live Bumble हो जाए दोस्तों। खत्म कर दे, खत्म करो ये सब सिस्टम। अब देखो बाकी की जो पीछे की जनता है इनको कॉमेडी में इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको ये पूरा देश यही है। करा दो भाई सब रिश्ता, करा दो, हो जाए तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सारे बाराती तो आए रखे थे हमारे साथ। एवरीवन इज हियर, ठीक है। देखेंगे नहीं है ना, ऐसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनाली। योर नेम इज मनाली। इट्स अ गुड नेम। आप में चारों में से कोई इंटरेस्टेड? मनाली में कोई है यहाँ पे? कुल्लू उल्लू नाम का बंदा है यहाँ? एनी कुल्लू धर्मशाला कोई है? क्या नाम है आपके? चारों एक एक बताओ। क्या नाम? अविनाश, सुमित, रतन, दीपक। आई वुड से इन चारों में मेरे हिसाब से तो दीपक सबसे ज्यादा ठीक दिख रहा है वैसे। ठीक है मेरे हिसाब से। सॉरी आप तीनों भी ठीक हो। मेरे भाई को तो अच्छा बोल दो भैया। दीपक भाई ठीक दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और मनाली जी भी स्मार्ट है, ठीक है। तो दीपक भाई क्या करते? क्या आपके इंटरेस्ट क्या है लड़कों में? हैं? यू आर? इट्स ओके यू आर डेटिंग मैम। नहीं नहीं इट्स नॉट ओके नहीं, मतलब अभी तो यार जस्ट बी ए स्पोर्ट। ओके मनाली इज आउट। यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? विधि। विधि क्या करते हैं आप? You are a physiotherapist? Okay. आप दीपक भाई क्या करते हैं? जावा डेवलपर। ये देखो भाई इसने एक बार भी नखरे नहीं दिखाए। मनाली ने मगर भाई जावा जावा। आप बात कराओ भैया। भैया मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी आज सेटिंग हो गई ना भैया, मैं कम से कम 150 लोगों को अगली बार मैं खुद लेके आऊंगा अपने। तो दीपक इज अ जावा डेवलपर and Vidhi, you work somewhere or you have your own practice? I am actually doing my specialization, master's. You're doing masters right now. Okay. And what are your expectation from Deepak? I will have to interact, then I'll get to know. No, you'll have to interact, but right now I am the interface. Just, okay? Interaction is happening through me, okay?
Right now there is no direct interaction. You will exchange numbers later, if at all, है ना? But I think मनाली आपको थोड़ा डिस्करेज करेंगे करने से. इसकी मनाली की शक्ल पे एक वो वाली वाइब्स है, एक वो वाली दोस्त नहीं होती जो अच्छा बनने वाला काम ही तोड़वाती. नहीं, गंदा लड़का है, मत जाओ उसके साथ. अगर आप किसी को टिंडर पे राइट स्वाइप करोगे तो क्या एक क्वालिटी देखोगे आप? पर्सनैलिटी. Like personality, you can give marks from 1 to 10. Okay, if I say it's 7, it's fine. It's fine. You can look at other things also. What else will you look? Height. क्यों ऐसा? height में क्या, कितने लंबे हो आप? 5'6". That's, she's tall. Everyone is tall. Above 5'4", everyone is tall. Okay. कहीं आप 5.5 हो, 5'5", आपको लगता है आप छोटे जाकर, नहीं, यू आर टॉल. ऑलवेज बिलीव. दीपक भाई आपकी क्या है? हाइट. फाइव 6 और 5'7". इट्स बेसिकली 5'6" ओनली. आर यू रेडी टू वेयर फ्लैट्स फॉर एवर? यू आर वेयरिंग दिस. शी इज वेयरिंग. सॉरी ब्रो, हाइट पे ही रिजेक्ट मार दिया. क्यों ऐसा क्या है? लड़कियों को क्यों चाहिए ऐसा? हमेशा लंबे लड़के क्यों होने चाहिए? छोटा लड़का क्यों पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू विद शॉर्ट गाइज. आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? You know what do they say about short guys? They say good things about short guys. You compromise somewhere, but you get a lot somewhere else. You are rejected. How tall are you? What's your name once again? Avinash. Avinash, आप कितने लंबे हैं? आप 5'7" चलेगा? नहीं चलेगा. क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 कितना चाहिए? आप 5'11" चलेगा? 5'11" चलेगा? 5'11", she's saying yes. But what if I tell you that what are your views on body positivity? क्या कहते हो? Are you in for body positivity कि a person should be happy in his or her skin? Yes, चलेगा ना? थोड़ा हल्का वर्कआउट लगेगा. हल्का लगेगा, नहीं हल्का, सही है. तो 5'11" मिल गया. पर्सनैलिटी आई वुड से 6.5 आएगी. ओके, एंड व्हाट एल्स? नो, आपसे बहुत पूछ लिया. आपको क्या चाहिए? सिंपल. या घरेलू सिंपल सी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए. सिंपल मतलब मिल जाए बस. नो क्वालिटीज ही वांट. देख रहे हो? पर्सनैलिटी तो मैंने इसकी 3 ही कर दी इस लाइन के बाद. रिजेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं, सब बातें करते रहेंगे बीच में. इट्स योर कॉल. इन केस यू गाइस वांट टू एक्सचेंज नंबर्स लेटर, प्लीज डू नॉट. मुझे आज से 2 साल बाद अपने इंस्टा पे डीएम नहीं चाहिए. तुम्हारे शो में मिली थी मैं उस टाइम. 1 नंबर घटिया इंसान था. अच्छी खासी मेरी लाइफ चली थी. आई डोंट नो व्हाई आई केम टू योर शो. I don't want all these DMs, okay? You meet your own people through Tinder, Bumble, whatever, and you guys keep trying. Keep working hard. One day we'll make it. Okay, guys, so that was the end of this video. I hope you liked the video. If you liked the video, then do subscribe to the channel. उसके अलावा बहुत सारा टूर कर रहा हूँ. इंडिया टूर की डिटेल्स ये रही. अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी मेरे ख्याल से, जो भी है. दिल्ली के अंदर इसमें बड़ा शो है 23 तारीख को, तो डू कम ओवर देयर. उसके अलावा परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन मई 19 से 29 तक 6-7 शोज है ऑस्ट्रेलिया में, और 1 शो ऑकलैंड में. ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. मेलबर्न, सिडनी एक शो सोल्ड आउट हो गया, सेकंड शो भी एडेड. एंड फाइनली कमिंग टू यूके वंस अगेन इन जुलाई. 7th, 8th, 9th को शो कर रहे हैं. यूके 7th को बर्मिंगम है, 8th को डबलिन है, 9th को लंदन है. लंदन इज फीलिंग फास्ट, so do come at these places. See you guys. Next video will be out soon.